नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कौन सा श्लोक आप कहते हैं? इस पर्टिकुलर श्लोक नहीं है, वो उसमें हम खोलेंगे, उसमें बात करेंगे। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 10 श्लोक 9 10.9। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। बोलो नहीं श्लोका पढ़ो, ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट। হরে কৃষ্ণ। মহারাজ আমাকে বলছেন যে অনুবাদ এবং তাৎপর্য অধ্যয়ন করার জন্য। হরে কৃষ্ণ। জয় শিলা প্রভুপাদ কি জয়। যাদের চিত্ত ও প্রাণ সম্পূর্ণরূপে আমাতে সমর্পিত, তারা পরস্পরের মধ্যে আমার কথা সর্বদাই আলোচনা করে এবং আমার সম্বন্ধে পরস্পরকে বুঝিয়ে পরম সন্তোষ ও অপ্রাকৃত আনন্দ লাভ করেন। শিলা প্রভুপাদের তাৎপর্য কি? শুদ্ধ ভক্ত যাদের বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে বলা হয়েছে, তারা সর্বদাই সম্পূর্ণরূপে ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেম ভক্তিতে যুক্ত থাকে। তাদের মন কখনোই শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ থেকে বিক্ষিপ্ত হয় না। তারা সর্বদাই অপ্রাকৃত বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করে। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ এই শ্লোকে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। ভগবত ভক্ত দিনের 24 ঘন্টায় ভগবানের লীলাসমূহ কীর্তনে মগ্ন থাকে। তাদের মন প্রাণ সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে নিমগ্ন থাকে এবং অন্যান্য ভক্তের সঙ্গে তিনি ভগবানের কথা আলোচনা করে গভীর আনন্দ উপভোগ করেন। ভগবত ভক্তির প্রাথমিক স্তরে ভক্ত ভগবানের সেবার মাধ্যমে অপ্রাকৃত আনন্দ উপভোগ করেন এবং পরিপক্ক অবস্থায় তারা ভগবত প্রেম প্রকৃতই মগ্ন থাকে। ভগবত প্রেমে প্রকৃতই মগ্ন থাকে। একবার অপ্রাকৃত স্তরে উপস্থিত হলে তারা অপ্রাকৃত স্থলে অধিষ্ঠিত হলে তখন তারা পূর্ণতম রস আস্বাদন করতে পারেন, যা ভগবান তার ধামে প্রদর্শন করে থাকে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভগবত ভক্তিকে জীবের হৃদয়ে বীজ রোপণ করার সঙ্গে তুলনা করেছেন। ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন গ্রহে অসংখ্য জীব ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন। তাদের মধ্যে কোনো ভাগ্যবান জীব শুদ্ধ ভক্তের সংস্পর্শে আসার ফলে ভগবত ভক্তির নিগুড় রহস্যের কথা অবগত হতে সক্ষম হয়। এই ভগবত ভক্তি ঠিক একটি বীজের মতো এবং তা যদি
জীবের হৃদয়ে বপন করা হয় এবং হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে এই মন্ত্র শ্রবণ ও কীর্তন রূপ জল সিঞ্চন করা হয়, তাহলে সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। ঠিক যেমন নিয়মিত জল সিঞ্চনের ফলে একটি গাছের বীজ অঙ্কুরিত হয়, এই অপাকৃত ভক্তিলতা ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হয়ে জড় ব্রহ্মাণ্ডের অবতরণ ভেদ করে চিদ আকাশের ব্রহ্মজ্যোতিতে প্রবেশ করে। চিদ আকাশেও এই লতা বর্ধিত হতে থাকে এবং অবশেষে সর্বোচ্চ আলয় শ্রীকৃষ্ণের পরম গ্রহলোক গোলক বৃন্দাবনে প্রবেশ করে। পরিশেষে এই লতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সেখানে বিশ্রাম লাভ করে। একটি লতা যেমন ক্রমশ ফল ফুল উৎপাদন করে, সেই ভক্তিলতাও সেখানে ফল উৎপাদন করতে থাকে এবং সেই সঙ্গে শ্রবণ ও কীর্তন রূপ জল সিঞ্চনের পন্থা চলতে থাকে। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যলীলা ঊনবিংশতি অধ্যায়ে এই ভক্তিলতার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে এই ভক্তিলতা যখন সম্পূর্ণভাবে ভগবানের চরণ কমলে আশ্রয় গ্রহণ করে, ভক্ত তখন ভগবত প্রেমে নিমগ্ন হন। তখন তিনি এই মুহূর্তের জন্য ভগবানের সংস্পর্শ ব্যতীত থাকতে পারে না। ঠিক যেমন একটা মাছ জল ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না, এই অবস্থায় পরমেশ্বর ভগবানের সংস্পর্শে আসার ফলে ভক্ত সমস্ত দিব্যগুণে গুণান্বিত হন। শ্রীমদ্ ভাগবতমেও ভক্তের সঙ্গে ভগবানের এইরকম দিব্য সম্পর্কের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। তাই শ্রীমদ্ ভাগবত ভক্তদের অতি প্রিয় এবং সেই কথা ভাগবতেই দ্বাদশ স্কন্ধে 13তম অধ্যায়ে 18 নম্বর শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীমদ্ ভাগবতম পুরাণম অমলম বৈষ্ণবানাঞ্চনম প্রিয়ম। এই বর্ণনায় কোন রকম জড়জাগতিক কর্মের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি অথবা মুক্তির উল্লেখ নেই। শ্রীমদ্ ভাগবতে হচ্ছে একমাত্র গ্রন্থ যেখানে ভগবান ও তার ভক্তের অপাকৃত লীলাসমূহ পূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে। এভাবে কৃষ্ণ ভাবনায় শুদ্ধ ভক্তেরা অপাকৃত সাহিত্য শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করার মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগ করেন। ঠিক যেমন কোন যুবক যুবতী পরস্পরের সঙ্গ লাভের ফলে আনন্দ উপভোগ করে থাকে। হরে কৃষ্ণ। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा श्रीविशाखान्वितां च हे विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। আমি বাংলা জানি না, একটু জানি। আমি হিন্দি ভাষা বলবো, ঠিক আছে? হিন্দি আমি জানি না, কিন্তু আমি
प्रयत्न कोशिश करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो श्लोक पढ़े हैं अध्याय 10 से, ये अध्याय 10 विभूति योगा बोलते हैं, भगवान का वैभव, भगवान ही बोल रहे हैं उनका वैभव। जैसे यहाँ भौतिक संसार, भौतिक लोक में हम बहुत लोग देखते ही उनका वैभव वो बोलते रहेंगे, जहाँ भी देखो स्टेज में बात करेंगे तो उनके बारे में ही बात करेंगे, और दूसरे उनके बारे में बात करेंगे, उसको अच्छा मीठा लगता है कान में सुनने का। हमारा नाम लेंगे कोई, बहुत अच्छा है हमको, हमारे बारे में कोई बात करेगा तो बहुत अच्छा लगता है हमको, राइट। ऐसे नहीं सोच रहे हैं कि भगवान भी वैसी है, उनके बारे में वही बोल रहे हैं तो उनको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं। क्योंकि ने अर्जुन ने पूछा है कि ये परम पुरुष, पुरुषोत्तम भगवान की महिमा क्या होती है, तो भगवान से ही ये प्रश्न पूछा, तो भगवान ने बताया कि मैं ही हूँ वो जो पुरुषोत्तम, तो मैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। सो कभी कभी भगवान बोलते हैं, भगवान उत्तम पुरुष ऐसे होते हैं बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं मैं ऐसा हूँ, अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वम प्रवर्तते। क्यों दोनों एक ही है। जो परम पुरुष भगवान है उनके बारे में आपने पूछा, वो भगवान मैं हूँ, तो कभी मेरे बारे में बोलते हैं, कभी भगवान के बारे में बोलते हैं, दोनों भगवान ही बोलते हैं। सो ऐसा नहीं समझने का कि भगवान चाहते हैं कि उनका महिमा अर्जुन जान ले, उसने लेके तो नहीं बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन ने पूछा है भगवान को, इसलिए तो भगवान की महिमा क्या होती है भगवान स्वयं बोलते हैं यहाँ पर। इसके बाद 11 अध्याय में अर्जुन जो पूछते हैं कि जो कुछ भी आपने सुनाया हमको, आपका वैभव, वो हम देखना चाहते हैं, माने ऑडियो और विजुअल करना है हमको, ऑडियो विजुअल करने का है, विजुअल भी हम देखना चाहते हैं, तो आप बताएंगे। तो भगवान ने विश्व रूप बताया, उनका विश्व रूप बताया, जहाँ पर उनका पूरा महिमा एक तरफ एक ही जगह में देख सकते थे अर्जुन, राइट। तो यहाँ पर बोलते हैं भगवान ये महिमा के चैप्टर में भक्त के बारे में, ये श्लोक में बोलते हैं उनका भक्त का महिमा, उसका महिमा क्या होती है, भक्त का महिमा क्या होती है। उसका कोई बैंक बैलेंस नहीं, उसका कितना कार है, कितना बंगलो है, उनको कितना पैसा है, कितना इन्फ्लुएंस है, वो नहीं उसका महिमा। भक्त का महिमा है वो सदा भगवान की चिंता में, भगवान की सोच में, भगवान की ध्यान में रहते हैं, भगवान के दिव्य पाद के बारे में वो सोचते रहते हैं, उनका सेवा सोचते रहते हैं। यही तो भक्त की महिमा होती है, राइट। भक्त की महिमा क्या होती है, उसका मूल्य क्या है, वो भक्ति है। जो भक्त के साथ भक्ति है वही सबसे ऊंची मूल्य है। तो भगवान उनके बारे में बोल रहे हैं जो इतना ऊंची होते हैं। कैसे ऊंची होते हैं, कैसे ऊंची होते हैं वो भक्त, कैसे ऊंची होते हैं भक्त, क्यों ऊंची होते हैं, उनके पास भक्ति है। जो यहाँ पर भौतिक लोक में जिसके पास पैसा है वो ऊंची होता है कि नहीं। वो तो अच्छा, वो भाषा अच्छा जानते हैं। जो पैसे के बारे में हम बताएंगे जो आप जानते हैं, है ना। भगवान के बारे में बोलेंगे तो थोड़ा मुश्किल होता है समझने का। तो पैसा के वास्ते से हम बोलेंगे, जो कुछ भी हम उदाहरण वो अच्छा समझते हैं हम। तो जो पैसा होता है उसके पास ज़्यादा पैसा, वो यहाँ भौतिक संसार में ऊंचा होता है। लेकिन भक्त के लोक में, भगवान की आध्यात्मिक लोक में, जो भक्त शुद्ध भक्त होते हैं, उनके पास भक्ति होती है, वही ऊंचा होते हैं। समझे। तो भगवान उनके बारे में बोल रहे हैं, भगवान का महिमा भी भगवान ही बोल रहे हैं, लेकिन बीच में भगवान अपना भक्त का महिमा बोल रहे हैं। ये तो अच्छा है। सो यहाँ पर बोल रहे हैं मत चित्ता मत गत प्राण
बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये 4 श्लोक जो बोलते हैं वो चतुश्लोकी होती हैं, भगवद गीता का चतुश्लोकी बहुत मुख्य श्लोक होते हैं। यहाँ पर भक्त की महिमा आप सुन सकते हैं भगवान की मुंह से। मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परम। जो हमारे भक्त ऐसे होते हैं, शुद्ध भक्त कैसे होते हैं, वो हमारे अंदर ही रहते हैं, कृष्ण के अंदर वो रहते हैं, सदा कृष्ण का चिंता होती है उनका, बोध में कभी भी कृष्ण होते हैं, सिर्फ कृष्ण। तो और उनके जीवन, सारा जीवन भगवान की सेवा में लगा रखे हैं। उनके पास और कुछ चिंता नहीं, सिर्फ भगवान का सेवा का चिंता बस। कैसे मैं सेवा करूं भगवान की, कैसे मैं भगवान का अलंकार करूं, कैसे मैं भगवान के लिए ये चीज़ पकाऊं और उसको नैवेद्य उनको ऑफरिंग कर सकता हूं, कैसे मैं भगवान के लिए ये बड़ा उत्सव मनाऊंगा मैं, कैसे, ऐसे सोच में पड़ते हैं भक्त लोग। तो वो भक्त लोग के बारे में भगवान यहाँ पर बात करते हैं। मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। सदा भगवान की कथा सुनते रहते हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम, कभी भी 24 घंटे भगवान के कथा सुनते रहते हैं और भगवान के लीला के अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, समझे हिंदी हम जो बोल रहे हैं? समझे? तो और ऐसा वो करके उनको बहुत संतुष्ट होती है, तृप्ति होती है, तुष्टि होती है। किसको? भक्त को। जब भगवान का महिमा वो सुनते हैं, भगवान का कथा सुनते हैं, जब वो भगवान का सेवा करते हैं तो उनको बहुत खुशी आती है। किसको? भक्त को। कभी कभी मैं भी आपके पास प्रश्न पूछूंगा कि जानूंगा कि आप सो रहे कि नहीं। तो भक्त लोग को इतने ऊंचे स्थान में भगवान रखते हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। वह कथा सुन के बहुत संतुष्ट होते हैं, तृप्ति होते हैं उनकी। परीक्षित महाराज का कहानी आप जानते हैं? परीक्षित महाराज की शाप हुई। एक ब्राह्मण समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी बोल के, उन्होंने परीक्षित महाराज, चक्रवर्ती महाराज को शाप किया। छोटा बच्चा था, 5 साल का। 5 साल का सिंगी ब्राह्मणा ने कैसा ऐसा शाप किया बोलो? परीक्षित महाराज बहुत बड़े राज्य ऋषि थे, बहुत बड़े भगवान का भक्त थे। वो ऐसे भक्त थे, भागवत में बताया कि ऐसे भक्त थे जो भगवान को गर्भ के अंदर देख लिया उन्होंने, दर्शन कर लिया। जब माँ के गर्भ के अंदर थे, पैदा नहीं हुए अभी तक, वो तभी भगवान का दर्शन कर लिया अंदर ही। भगवान ने उनको दर्शन दिया, जब वो पैदा होने के पहले ही दर्शन ले लिया भगवान का। इतने बड़े भक्त थे, इतने ऊंची भक्त थे। तो वो पैदा होने के बाद वो राज बने, चक्रवर्ती राजा बने। युधिष्ठिर महाराज ने उनका स्थापित किया हस्तिनापुर में, जहाँ पर हमारा अभी न्यू दिल्ली है इंडिया में, वहाँ पर उनको राजा बोल के स्थापित किया। तो परीक्षित महाराज ऐसी एक बार वन के अंदर गए, क्या बोलते हैं, हंटिंग, शिकार के लिए गए। जो क्षत्रिय लोग हैं, शिकार के उनका शौक है। तो जब युद्ध नहीं होता था वो शिकार करते हैं फॉर्म में रहने के लिए। तो उन्होंने शिकार करने के लिए गया और बहुत दूर अंदर गया वन के अंदर। जब उनको प्यास लगा, भूख लगा, तो कहाँ पर कुछ मिलेगा उन्होंने देखा, और ये समीक ऋषि का आश्रम में गया। समीक ऋषि का आश्रम में वो देखा कि कोई नहीं है यहाँ पर हमको
स्वागत करने के लिए। हमको आप महाराज स्वागतम, महाराज स्वागतम, महाराज स्वागतम बोल के हमको स्वागत किया। लेकिन परीक्षित महाराज को, इतने बड़े चक्रवर्ती को कोई नहीं थे वहाँ पर, कोई तरफ की स्वागत नहीं, प्यास बुझाने के लिए थोड़ा पानी नहीं, भोग के लिए कुछ ऐसा वैसा कुछ ना कुछ फल, कुछ ना कुछ नहीं है, कोई देने वाला नहीं था। वो आश्रम में सिर्फ बैठते थे। समीक ऋषि वो ध्यान में थे, वो गहरा ध्यान में थे। तो वो नहीं देखे कि यहाँ पर चक्रवर्ती महाराज परीक्षित आए हैं, वो देख नहीं पाए क्योंकि वो बहुत गहरा ध्यान में थे। तो परीक्षित को भूख और प्यास में हमको देखभाल करने के लिए कोई नहीं यहाँ पर, हमको प्यास लग रहा, कोई पानी देने के लिए नहीं है। तो उनको गुस्सा आया क्योंकि वो ऐसा क्षत्रिय था, गुस्सा आया। और वहाँ का एक सांप था वहाँ पर, जो मरा हुआ सांप, वो सांप का लाश लेके उसके गले में लगा दिया। कैसा ऋषि है वो, अतिथि जो आया है उनका स्वागत करने नहीं जानते हैं। तो बोल के उसको मन में ऐसा कुछ आया कि वो मरा हुआ सांप को उनके गले के ऊपर लगा दिया गुस्से में, और वो चले गए। चलो हम वापस जाएंगे और हमारा महल में जाएंगे और प्यास बुझाएंगे हम। तो वो चले गए वापस। लेकिन वो वापस तो चले गए, तो महल में पहुंचे तो वो सोचने लगे क्यों ऐसा व्यवहार किया ये ऋषि और मुनि, हमारे साथ क्यों ऐसा व्यवहार किया कि हमका कुछ स्वागत नहीं किया, कुछ प्यास बुझाने के लिए पानी वानी कुछ नहीं दिया, ऐसा क्यों किया वो। और वो सोच में पड़े, लेकिन मैं भी क्यों ऐसा किया कि उनके मरा हुआ सांप उसके ऊपर गले में लगा दिया। वो भी हमारा व्यवहार नहीं है, लेकिन हमने ऐसा कर दिया, यहाँ पर कुछ और चल रहा है बोल के वो सोच में पड़े। तब यहाँ पर वो समीक ऋषि का जो पुत्र है, उनका नाम था श्रृंगी, वो गुरुकुल में पढ़ रहे थे। लेकिन उनका पिताजी का आशीर्वाद से वो बड़े ब्रह्म तेजस हुआ उनकी, राइट। उनको गुरुकुल में बहुत अच्छा पढ़ाई था और उसका थोड़ा गर्व भी था वो छोटा बच्चा का। तो उन्होंने सुना कि हमारा पिताजी के गले में ये परीक्षित महाराज ने मरा हुआ सांप लगाया है और उसका निंदा किया है, हमारा पिताजी का निंदा किया है। तो वो भी गुस्से में आए, कैसे लोग हैं ये क्षत्रिय लोग, क्या सोच रहे हैं वो नहीं जानते कि हमारे वास्ते से वो जी रहे हैं। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का जो कुछ भी एडवाइस हम दे रहे हैं उसके वास्ते से क्षत्रिय लोग जी रहे हैं, और इनको ऐसा व्यवहार तो बहुत बुरा है। तो उसको गुस्से में आके मेरे पिताजी के गले में इस मरा हुआ सांप लगाया, तो उसको गुस्से आ गया और उसने शाप किया परीक्षित को। महाराज को शाप किया कि 7 दिन में आप मर जाएंगे। सांप तक्षक बोल के वो सांप आके आपको काटेगा और आप मर जाएंगे बोल के अंदर वो नदी के अंदर बैठ के पानी लेके वो मंत्र लगा के शाप किया। ब्राह्मण का शाप ऐसी शाप होती है, बहुत मुश्किल है उससे बाहर आने का, क्योंकि वो ब्रह्म तेजस उनकी होती है, उनको वो शक्ति होती है ब्रह्म शक्ति। तो उससे उन्होंने शाप किया। शाप किया तो महाराज परीक्षित को वो न्यूज़ खबर आया कि श्रृंगी जो बच्चा है वो आपको शाप किया है, 7 दिन में आप मरने वाले हैं, एक सांप आपको आके काटेगा, आप मर जाएंगे। तो परीक्षित महाराज ने सोचकर ऐसा डिसीजन लिया उन्होंने कि छोड़ो, हम उनके पीछे नहीं जाएंगे, उनको आक्रमण नहीं करेंगे, हमको कर सकते हैं, हमारे तो शक्ति है, हम तो परीक्षित महाराज हैं, हम तो कुछ तो भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। भगवान की कुछ इच्छा है इसमें, ये जो चल रहा है उसमें भगवान की हाथ है, ऐसे तो ज़रूर होना है, क्योंकि मैं क्यों सांप, मरे हुए सांप लगा उसके गले में लगा दिया, और ये बच्चा क्यों हमको एक
चक्रवर्ती महाराज को शाप दे रहा है, ये सब ऐसा वैसा लगता है, कुछ भगवान का प्लान है बोल के उन्होंने पूरा त्याग कर दिया, उसका राज्य दे दिया, उसका कुटुंब में जो कुछ भी उनका रिश्तेदार थे उसको सब त्याग कर दिया, और भिक्षु बन के वो गंगा नदी के किनारे चले गए। सब राज्य सज्जय सब छोड़ के उनके पुत्र के साथ जन्मेजय के पास छोड़ के वो चले गए, क्योंकि अभी सिर्फ 7 दिन है हमारा, 7 दिन में हम मर जाएंगे, 7 दिन में हमको क्या करने का है बोल के वहाँ पर किनारे में चल गए। ये खबर सुन के सारे संसार में सब लोग परीक्षित को जानते थे कि वो बहुत मशहूर थे, बहुत प्रसिद्ध थे, सब लोग जानते थे। तो सब लोग देखने के लिए आए, क्या हुआ, क्यों परीक्षित महाराज को किसी ने शाप किया, एक बच्चा क्यों ऐसा किया बोल के सब लोग सब जगह से आने लगे परीक्षित महाराज को गंगा के किनारे में देखने के लिए। समझे? यस और नो? यस। हरि बोल बोलो। धन्यवाद। सब लोग वहां पर आ गए, बहुत बड़ा मेला, सब ऋषि मुनि राजा लोग सब लोग मशहूर लोग सब आ गए वहां पर, क्योंकि परीक्षित महाराज उतने मशहूर थे। सो वहां पर आके परीक्षित महाराज को भिन्न भिन्न तरफ की एडवाइस दी सब लोग, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। ऋषि मुनि जो कुछ भी बोलते थे वो सुन लिए, लेकिन परीक्षित बचपन से वो बहुत बड़े भक्त थे भगवान का, इतने बड़े भक्त थे, इतने बड़े शुद्ध भक्त थे, तो उनको कृष्ण के बारे में जानना उनका थोड़ा इच्छा थी। मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ, मैं क्या करना है अभी, ऐसे मेरे ऊपर किसी ने शाप डाला तो मैं क्या करना हूँ, ऐसा उनका प्रश्न था। तब सब लोग ऐसे वैसे बोले। वहाँ पर पहुँचे, सुखदेव गोस्वामी का पिता व्यासदेव भी आ गए, व्यासदेव का पिता पराशर मुनि भी आ गए, नारद मुनि भी आ गए, सब लोग आ गए वहाँ पर परीक्षित को देखने के लिए। उसके बीच में सुखदेव गोस्वामी वहाँ पर आए। सुखदेव गोस्वामी कितना साल थे उनका? 16 वर्ष का टीनेज बॉय था। जो आजकल टीनेज बॉय फोन लगा के ऐसा वैसा वो फिरते हैं ना यहाँ पर, ऐसे नहीं थे, वो पूरा नंगा थे, वो दिगंबर, क्योंकि वो कंप्लीटली पूरा 100% भगवान के सोच में थे। ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम। वो सुखदेव गोस्वामी ऐसे थे, वो सिर्फ कृष्ण को देखते थे, जहाँ पर कहाँ पर देखते थे वो सिर्फ कृष्ण को देखते थे। वो ऐसी ऊंची भक्त थे जिनको भगवान के बारे में पूरा मालूम होते थे। तो वहाँ पर पहुँच गए वो, और परीक्षित महाराज ने उनका स्वागत किया, और सब लोग को जब सुखदेव गोस्वामी को वो सब लोग देखे, वो जानते थे कि ये बहुत बड़ा परमहंस है, महाभागवत है, वो देख सकते थे कि उसका लक्षण ऐसी थी। तो वो सब लोग उनका नमस्कार किया, दंडवत प्रणाम किया। सिर्फ नारद मुनि, व्यासदेव, पराशर मुनि दंडवत प्रणाम नहीं किया, बाकी सब लोग किया। और इनको देख के सुखदेव गोस्वामी उनका प्रणाम उनका भी किया। वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने उनका प्रणाम किया, और परीक्षित महाराज ने उनका आसन दे दिया, वो बैठ गए वहाँ पर ऐसा आसन में। और परीक्षित महाराज पूछने लगे कि ऐसा शाप हुआ हमारे ऊपर, हमको क्या करने का है, हम भी भगवान का कुछ सेवा किए हैं, हम भगवान का भक्त हैं। तो वो खबर भी उनको दे दिया। तो सुखदेव गोस्वामी बताए, वर्यान्येषते प्रश्न, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। लोकहितम, ये जो ऐसी उत्तर मैं दूंगा सब लोग के लिए अच्छा है, लोग के लिए अच्छा है। तो ऐसे प्रश्न आपने पूछा क्योंकि कृष्ण के बारे में आपने पूछा,
जो कृष्ण भक्त है वो क्या करने का है। वहां से भागवत का कथा सुन हुआ। 7 दिन के लिए सवेरे और रात्रि पूरे परीक्षित महाराज कुछ नहीं खाए, कुछ नहीं पिए। वो प्यास में समीक महाराज के गले में मरा हुआ पाम को लगा दिया, लेकिन यहां पर 7 दिन कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, कुछ सोया नहीं। 7 दिन पूरा ऐसे ही सुना। क्यों? उतना अच्छा था सुनने का। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति रमन्ति च। इतना खुश था उनको, इतना फोकस थे, हमको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान के बारे में सुनने का है। तो सुखदेव गोस्वामी एकदम नंबर 1 कथाकार थे। भगवान के बारे में जो कुछ भी प्रश्न पूछते थे परीक्षित महाराज, वो सुखदेव गोस्वामी, अच्छा प्रश्न आपने पूछा भगवान के बारे में, बोल के बोलने लगे कथा। बहुत कथा बताए और सब कथा परीक्षित महाराज ने सुने। इतना रुचि था, इतना टेस्ट था उसमें, तो वो खाने का, पीने का, सोने का सब कुछ भूल गए। क्योंकि कृष्ण कथा का ऐसी लक्षण है, जो बद्ध जीव उनको कृष्ण कथा सुनने की मौका मिलती है, वो सबसे भाग्यशाली है, उत्तम भाग्यशाली है। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति रमन्ति। आप जितने भी सुनेंगे उतने भी पूछने लगेंगे, और बताओ कथा, और बताओ कथा। तो परीक्षित महाराज पूछने लगे बहुत सारे प्रश्न, एक एक प्रश्न के बारे में एक एक कहानी सुनाए सुखदेव महाराज। तो इन दोनों ने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, सोया नहीं। ऐसा होगा हमारा मीटिंग, तो आपको कैसा लगेगा? 7 दिन के लिए आप करेंगे? सोने का, पीने का, खाने का कुछ नहीं है, सिर्फ कान से हम खाएंगे पिएंगे कृष्ण कथा। तो कृष्ण कथा ऐसी होती है, उसका शक्ति ऐसी होती है। जो कृष्ण कथा सुनते हैं और घोर से सुनते हैं, उनको एकदम उनके हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है, और वो जब उनका टाइम आते हैं वो सीधे वैकुंठ लोक, गोलोक वृंदावन में चले जाते हैं। ये तो कहानी हम सुनते हैं, परीक्षित महाराज ने 7 दिन तक सुना और भगवान में इतना ध्यान था उनका, वो पूरे भगवान की सोच में